computer. Okay, guys. So, I got a question from one of my friend and so kind of student. So he said, मैंने सेशन ज्वाइन किया था, आई ज्वाइन द सेशन बट आई डिडंट अंडरस्टैंड वो क्या होता है, होपोनोपोनो, ईएफटी, और ही वाज नॉट एबल टू प्रोनाउंस आल्सो कि क्या क्या था वो होपोनोपोनो। मैं बोला यार ब्रो कब ज्वाइन किया था? वो बोले कल परसों ज्वाइन किया था। सो आई गॉट द आइडिया रिगार्डिंग एवरी स्टार्टिंग फॉर द पीपल हु आर ज्वाइनिंग न्यू एंड हु डोंट हैव एनी आइडिया एब्सोल्युटली, because a lot of people keep on sharing the WhatsApp group link here and there and new participants come get added. तो आज भी सुबह एक दो लोग, दो तीन लोगों ने ऐड किया और उनको कुछ नहीं समझा एंड दे स्टार्टेड मैसेजिंग, भाई ये क्या होता है? सो एट स्टार्टिंग शार्प वी विल every day we will start sharp by 9. So 9 से 9:05 तक lot of participants come, 9:10 तक सब आ जाते हैं. What we will do is, like, within 5 to 10 minutes we will wrap up everything. To wrap up, before before doing all the wrap up, I will just help you to go through all whatever we have covered. ये स्टार्टिंग का 5 मिनट रेगुलर एक रूटीन रहेगा जो हम फॉलो करेंगे डेली, ताकि न्यू पार्टिसिपेंट्स हु आर कमिंग जस्ट टुडे will get aligned, or who might be watching with the recording, they have absolute clear idea of what they are doing. नहीं तो ऐसा ना हो कि पता ही नहीं क्या कर रहे हैं. It happens with lot of people. So this is our 400 days of journey जो हमको करना है. So just for 5 to 10 minutes, it will be at the starting, it will be more about the alignment so that you get aligned. Whoever are very new to the session will try to understand. Now we have to understand that there are three things when it comes to improving dating life, when it comes to improving going out and improving your verbals and your communication, your interaction skills, when it comes to dating, relationship, woman, or you may call it a game, or understanding and improving yourself in terms of male to female dynamics. So there are three phases. One is outer game, whatever the techniques, strategies, methods you use, that comes in the phase of outer game. Then there is a game plan. Game plan is something, a structure you follow. So the both the things fall into the outer game. हम बाहर क्या कर रहे हैं, what we are doing outside when we are actually in the interaction with woman. And the another part is inner game. Inner game is all about your mindset, your belief system, your core values, that are they matching with what you are saying? Why do we do inner work as a man in dating? All the questions have been answered, because after all, at one point it all comes to mindset, and our purpose behind doing this in our daily work to fix our dating relationship from inside, changing our belief system. When we go and hustle outside a lot, there is a lot of damage inside us. Like, lot of people have been stuck with their own preconceived biasness, their conditioning, their mindset, their belief. They feel that they don't have that sex worthiness inside them. So uh, during this process there is a lot of pain, or there is a lot of loopholes in understanding, and there is a lot of issues related with mindset. For that purpose we are daily working on ourselves. This is something called inner inner game and outer game. You have to understand the difference between them. If you don't understand the difference between, and if you have absolutely no idea what inner game is, some people generally think that going out and approaching the woman will fix their dating life. I have tried that for 2 years, and trust me, I didn't got anything. And I was talking with like around 100 to 200 women in a week, and trust me, the results were. So for that I have already uploaded a video on YouTube which was related with inner game. Rajbhai, Hindi, English. Okay, I will try to have both the languages. तो अगर आपको नहीं पता है इनर गेम होता क्या है, देन डेफिनेटली गो थ्रू दिस प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इनर गेम होता क्या है, इनर गेम का फंडा क्या है. ओके.
And when it comes to inner game, we are not claiming that you don't have to take the action. Action is something. This is the core philosophy we aligned. And I will be reminding you every day. मैं ये चीज़ें आपको रोज बताऊंगा। 5 स्तर के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने दिमाग पे भी काम नहीं करते, माइंडसेट पे भी काम नहीं करते, ना मेडिटेशन करते, ना विजुअलाइजेशन करते हैं, ना ही कुछ चीज़ करते। दूसरे तरफ वो लोग होते हैं चौथे कैटेगरी के, और ना ही एक्शन लेते हैं। ये 5वीं कैटेगरी के। चौथे कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, जिम जाएंगे, पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, अफर्मेशंस लिखेंगे, माइंडसेट पे बहुत काम करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे गो आउट एंड हाउ मेनी वुमेन हैव दे हैव टॉक्ड इज जीरो। We don't want to fall into this. I would say at least they are doing something on mindset, but this is also the worst category. Third category, I really respect and appreciate a lot the typical type of action takers, the typical type of gamers. भाई एक एक दो दो साल से, तीन तीन साल से रोज बाहर जा रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द रिजल्ट इट्स नथिंग। देयर इज समथिंग अ लैक इनसाइड देम। उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअली वो बिलीव नहीं कर रहे। सो फॉर देम they need to work on the mindset. But trust me, action beats everything. I respect these people. At least I will put them in the third category, because without action there is no manifestation, without action there is no attraction. What is the second category is that I solely believe जो दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और अपने माइंडसेट के ऊपर भी काम कर रहे हैं रेगुलर। सेकंड कैटेगरी। और द नंबर वन कैटेगरी वो लोग जिनका ये कप ऑफ टी ही नहीं। दे आर जस्ट लकी। सो अगर आप लकी होते थे तो डेफिनेटली आप यहाँ नहीं होते थे, आप किसी ग्रुप में नहीं होते थे, आप किसी कोच को नहीं जानते थे, आपकी रियलिटी में ये चीजें नहीं आती थी। दैट्स सिंपल। नाउ दिस इज समथिंग आर स्केड्यूल कि हम हर बार लेवल अप करते हैं। वी ट्राई टू लेवल अप एवरी टाइम। वी स्टार्टेड विथ 3 days ऑफ मेडिटेशन। हमने 3 days का मेडिटेशन चैलेंज किया था, जिसमें हमने बेसिक, एकदम बेसिक लेवल का समझा था कि इनर गेम क्या होता है, आउटर गेम क्या होता है, चीजें कैसी होती है, बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करने पड़ते हैं। तो 3 दिन का हमने ये किया था। वी जस्ट कंप्लीटेड विद 3 days ऑफ मेडिटेशन चैलेंज। देन वी वेंट इनटू 5 days ऑफ मेडिटेशन चैलेंज, वेयर वी अंडरस्टैंड डीपली अबाउट द प्रैक्टिसेस, द माइंडसेट, द लॉट ऑफ अदर थिंग्स which was related with your issues। कि पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हमको क्या क्या प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है। इट्स ऑलरेडी 9:08। आई विल ट्राई टू रैप अप इन 5 minutes। देन वी केम टू द 7 days। 7 days का हमने कंप्लीट किया, जो हमने पूरी प्रैक्टिस किया, विच वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ EFT, हुपोनोपोनो एंड आर डेली रिचुअल दैट वी आर गोइंग टू फॉलो थ्रू आउट द प्रोसेस। नाउ वी आर ऑन द 10 day फेज। तो हम ऑलरेडी 10 day पे है। वी विल बी वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी ब्लॉक्स। 7 days पे और 5 days पे हमने अच्छी तरह ब्लॉक समझे। ये अगर 10 चीजें हैं, इन प्रॉब्लम्स को हटा दो, तो गेम विल बिकम अ क्विक फिक्स फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, 3 days चैलेंज ये था जो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में हमने 5 days का किया, स्ट्रॉन्ग रियलिटी के बारे में समझा, वी अंडरस्टूड 1 to 7 days। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, द एंटायर रिकॉर्डिंग आर अवेलेबल हियर। आपको बस इस चैनल पे जाना है, आपको सर्च करना है रिबेलियस राज, RAAJ। अगर आप वो सर्च करते हो तो यू विल गेट, गो इनटू द प्लेलिस्ट सेक्शन। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये वाला सेक्शन दिखेगा, अनलीश द इनर गेम। ऑल द मेडिटेशंस एंड विजुअलाइजेशंस एंड ऑल द अदर मेडिटेशंस विल बी पुट हियर। नाउ इफ यू विल गो टू दिस, यहाँ जाने के बाद में आपको एंटायर वीडियो सीरीज मिलेगी, from the sequence, from the start to first। if you have done it very good, then you will be aligning more with the session। स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट में सिर्फ आपको इसी चीजों के ऊपर बात करूंगा, ताकि द न्यू पीपल कम इनटू दैट विल अलाइन। द ओल्ड पीपल हु आर कंसिस्टेंटली डूइंग, दे जनरली हैव द टाइमिंग फ्रॉम 9:05 to 9:10 तक वो ज्वाइन कर लेते हैं। सो गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। नाउ वी आर ऑलरेडी हियर। हमारा ऑलरेडी थर्सडे, फ्राइडे, आज सैटरडे, आज हम लैग के ऊपर काम करेंगे। लेट मी रिमूव विद दिस माइक, क्योंकि माइक में अभी मुझे हेडफोन लेने पड़ेंगे। माई हेडफोन्स आर नॉट वर्किंग। सो ओके। विश्व भाई, आज कनेक्ट करना है ना 11 बजे? हाँ भाई, हाँ भाई। ओके। 11:10, 11:05 तक कनेक्ट कर लेंगे। हाँ, श्योर श्योर। तो वी विल टॉक अबाउट द लैग। कल हम करेंगे जेलेसी के ऊपर, फिर एंगर के ऊपर, फिर गिल्ट के ऊपर, फिर 10 days। 10 days के बाद में फ्रॉम 10 दिन तक
हम ये रोज प्रैक्टिसेस करेंगे, ट्राई टू गेट आर प्रोटोकॉल शीट कंप्लीट। हम उसको फिर से एक बार मगअप करेंगे पूरा का पूरा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विथ रिविजन, एंड प्लस वी विल ऐड सर्टन थिंग्स। एंड फॉर 3 days हम करेंगे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस मेडिटेशन। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस इज समथिंग डिफरेंट। इट्स लाइक मैं जो बोलता हूँ मैं वो बिलीव नहीं करता हूँ, मेरा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। वो हम बाद में सीखेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट आर रेगुलर सेशन। लैक, लैक को समझ लो। वैसे तो लैक सब थोड़े थोड़े फील करते हैं, अलग अलग लोगों को लगता है उनमें कुछ तो भी कमी है। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप में ऐसी क्या कमी है जिसके वजह से जब हम बाहर जाते हैं कुछ करते हैं, वी डोंट फील आवर सेल्फ एज कंप्लीट। एंड रिमेंबर, love, when it comes to the things like love, giving, forgiveness, the control, strong reality in the outer world, in the superficial world, where we chase the objects like dating, relationship. काफी लोग बोलते हैं कि आपने काफी लोगों से सुना होगा, अरे डेटिंग मीटिंग पे काम नहीं करना है, ये सब निचले लेवल के लोगों की बातें हैं, ये वो। To some extent they are true, because they might not be having that kind of lack. किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो जिसका वो जो प्रॉब्लम नहीं होता है वो सोचता है अरे ये सब तो फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे अगर वेट लॉस का प्रॉब्लम नहीं है और जो वेट लॉस के ऊपर काम कर रहा है, मैं हमेशा उनको जज करूंगा, अरे ये क्या करते रहते हैं, जस्ट बिकॉज आई एम लकी। आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम, सो आई थिंक दैट जितने भी वेट लॉस कोचेस है वो सब साले स्टूपिड है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। किसी किसी का वो प्रॉब्लम होता है, किसी किसी का डेटिंग प्रॉब्लम होता है, किसी किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है। हमारा है इसलिए हम यहाँ है। एंड वी आर नॉट हियर टू जज और जस्टिफाई और एक्सप्लेन देम व्हाई वी आर डूइंग दैट। हमको हमारा लैक फाइंड आउट करना है, व्हाई। क्योंकि when you are with a woman, when you are in relationship, we they don't want incomplete people. No one wants to fall, no one wants to submit to the frame. you know we only submit in the frame of people who are at least better than us or have a strong reality than us. Why and how this strong reality is created is just because he must know. आज का एक एग्जांपल देता था। मैं दोस्त से मिलने गया था, तो हम चाय वाय पी रहे थे, तो वहां पे दो लड़के बैठे, एकदम टपोरी किस्म के वाहियात लड़के। है खर्रा खा रहा है और थूक रहा है इधर उधर, और दूसरा एकदम नशे में भंड बैठा है और उनकी बातें चल रही। ए ब्रो, तेरे को पता है क्या वो, कोई तो भी लड़की का नाम था चिंकी करके, अरे वो चिंकी को बताएगा भाई, बहुत बोला उसको वहां पे जाके, ऐसा वैसा ये वो। और फिर वो दूसरे उसके फ्रेंड को फोटो दिखा रहा है, भाई ये तो कड़क आइटम है बे। इनकी बातें चल रही है एकदम टपोरी लैंग्वेज में। मैं बैठ के मैंने बोला चलो छोड़ो, और मेरी एक नजर गिरी उस फोटो। द गर्ल वाज रियली डैम गुड। भाई उसको बाप बहुत बड़ा डॉक्टर है, ऐसा ऐसा ये बोला यार, क्या शेमिंग कर रहे हो किसी के फिर मैंने सोचा, फिर मैंने एक बिहेवियर ट्राई आइडेंटिफाई किया इनका। अब साइकोलॉजी काफी पढ़ता हूँ तो चीजें समझने की कोशिश करता हूँ अपने बुद्धि के स्तर पे। दीज पीपल, द पर्सनालिटी ट्रायड्स, I have heard a lot of time the bad boys, the jerks, the casinos, the good, cool jack dudes. इनको कभी लगता नहीं है, इनके मन में इनको किसी चीज में कमी है। इनको ऐसा लगता है कि दे आर इनफ, एंड दे आर मोर देन इनफ। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे हमेशा लगता था कि मुझ में कुछ तो भी कमी है। इसका एक एडवांटेज होता है और इसका एक डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज ये होता है जब हम ऐसी चीजें होते हैं तो हम इतना एनालाइज नहीं करते, ये कमी है, इसमें सुधार की जानी चाहिए। हमारा एक दोस्त था, भी क्या करें, इतना बड़ा ढेरी था उसका, ऐसा एक बड़ा पेट था, सब भालू जैसा मुंह था, कचर कचर गुटखा खा के थूकते रहता। एंड दैट गाय हैज डेट द वुमन
इतने साल हो गए, 7 साल हो गए डेटिंग में। कभी कभी मुझे भी वो फील आता है कि यार मे बी दिस वुमन आर बियॉन्ड माई रियलिटी, बियॉन्ड माई रीच। बिकॉज लुक एट दैट स्टेटस, लुक एट दैट charm, look at their charisma, look at their family upbringing, look at their culture, look at their class, their money, their mentality, their education, their salary packages. It's like na, I had one friend who was a yoga teacher, everything, n number of quality of personalities थी उसकी। और जब मैं उसको मिलता था, उससे बात करता था, तो मुझे हमेशा लगता था यार ये लड़की तो मेरे बियॉन्ड रीच है यार, मतलब बिकॉज डीप डाउन मैं वो सोचता था कि मेरे अंदर कितना लैग है। जब मैं वो विक्या, मेरा जो दोस्त था, उसको लेके गया और वो मिला, अरे भाई ये तो मस्त आइटम है, उसका वो टपोरी एक्सेंट शुरू, इसको तो भाई, उसको तो ऐसा है वैसा है। मैंने बोला भाई सच है एंटाइटलमेंट। बट कभी कभी यही चीजें ईगो बन जाती। आप उस पर्सन को मिलोगे तो आप 10 मिनट बात नहीं कर पाओगे। अगर आपने जिंदगी में 4 अच्छी किताबें पढ़ी है अपने लाइफ में, आपके लाइफ में आपने आपने अगर बेसिक क्वालिफिकेशन लिया है, इंजीनियरिंग बीकॉम वगैरह, इस पर्सन की मैं कहानी बताऊंगा आपको, आपको मजा मजा आ जाएगा। इसने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में इसने 12 साल लगाए। 12 साल लगाए। इसको पढ़ने वढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, रोज अपना मस्त पैसे जमते, मटका फटका खिलता था, पैसे जमा लेता था कहीं तो भी, और चलो क्वार्टर पीने की सोई लग गई अपनी। तो एक दिन, इसकी इसकी रियलिटी बताता हूँ, इसकी रियलिटी एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, मजेदार किस्सा है। श्योर भाई। तब अकल नहीं थी विश्वा भाई, तब बुद्धि नहीं। अच्छा। तब मुझे पता नहीं था ये गेम क्या होता है, ये रियलिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करिश्मा क्या होता है, ये फ्रेम क्या होता है, ये फ्रेम का कंसेप्ट ही नहीं समझता था। तो मैं हम्म। जज करता था। एंड द प्रॉब्लम विद दैट ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू जज समवन, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम हिम। तो मैंने कभी कुछ सीखा ही नहीं। मैंने सब कोचेस को, बड़े बड़े कोचेस को लाखों लाखों रुपए दिया, पर आज, उस समय अकल नहीं थी, लेकिन आज मैं उसको एनालाइज करता हूँ ना कि सबसे अच्छा कोच हो सकता था ये पर्सन। हम्म। क्योंकि इसको कॉन्शियसली नहीं पता होगा, इसको तो ये भी नहीं पता है कि भाई मिस्ट्री कौन है, टाइलर कौन है, डेविड डी एंड्रयू कौन है, नील स्ट्रॉस कौन है, इंडिया में बड़े बड़े कोचेस कौन है। कोई ही नहीं, कोई कुछ नहीं पता होगा, बट इसका इसका रियलिटी बहुत स्ट्रांग। तो क्या हुआ एक बार, 11वीं 12वीं की बात थी। तो मैं हमेशा, हमारा कैसे चलता था कि घर से गाड़ी के लिए लिमिटेड पैसे मिलते थे, 100 रुपए 50 रुपए। तो एक दिन वो गाड़ी लेता था, एक दिन मैं गाड़ी लेता था, तो हम आधा आधा पेट्रोल डालते थे, और आधे पैसे हमारे खर्चे के काम में आ जाते थे। चला, सिगरेट फूकने के लिए, उसको पूड़िया खानी रहती थी, वो गुटखा उटखा खाता था तो उसके लिए, फिर अगर हमको कहीं घूमने घूमने जाना है उसके लिए। तो हम ऐसे, पॉकेट मनी बहुत लिमिटेड रहती थी, तो ऐसे हमारे खर्चे चलते थे। और जब किसी घर पे कोई नहीं रहा तो बैठो पार्टी करने। तो ऐसा हमारा 11वीं 12वीं का साल निकला। तो इस पर्सन का ऐसा था, ये बहुत ही एटीट्यूड था, और बहुत ज्यादा ओवर एंटाइटल्ड था, ओवर एंटाइटल्ड। और उसकी काफी गर्लफ्रेंड्स थे। ही हैड डेटेड लॉट ऑफ वुमन, एटलीस्ट बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। क्यों करता था? तो इसका माइंडसेट देखो। व्हाट, आज का टॉपिक लैक, लैक। तो एक दिन मैं गया उसको, वो बोले यार मैंने बोला क्या चलने वाला है क्या तू? मैंने बोला हाँ। वो बोले आता हूँ मैं। तो वो आया, फिर उसको कोई दोस्त मिल गया, तो दोस्त के साथ वो चले गया। दूसरे दिन मैं आया, तो उसका पिताजी मेरे को पूछ रहा था, क्यों रे, तू कहाँ गया, लेके गया था विक्या को? मैंने बोला कुछ नहीं अंकल, हम ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से फिर हम घर पे आ गए। उसके बाद में कहाँ गया? मैंने बोला उसके बाद में तो मैं घर वालों के साथ चले गया था, मैं शादी में जाना था मेरे को। तो रात को तू विक्की के साथ में नहीं था? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं था विक्की के साथ। फिर मैंने दूसरे दिन उसको फोन लगा के पूछा, नोकिया एन सीरीज रहता था मेरे पास में, साले तेरे पापा का, तेरा बाप मेरे ऊपर बहुत ताव दे रहा था, क्या हो गया? अरे भाई तू मिल के बताता मैं तेरे को। फिर वो बहुत दारू पिया, ओल्ड मंक के 2.5 क्वार्टर निपटा लिया, और गर्लफ्रेंड को गालियां दे रहा है, 4 5 गर्लफ्रेंड को फोन लगा के गालियां दे रहा है, एकदम गंदी गंदी गालियां, अभी तेरे घर पे आता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मैंने बोला व्हाट काइंड ऑफ डिक हेड दिस पर्सन इज। क्योंकि मेरे अंदर बहुत नाइस गाय सिंड्रोम है, मेरे अंदर बहुत पीपल प्लीजिंगनेस, और इस पर्सन के अंदर कुछ नहीं है ऐसा। और भाई गंदी गंदी गालियां दे रहा है लड़की को। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है लड़कियां क्यों इसके पीछे पागल है इतनी। अब वो मेरे को स्टोरी बता रहा है क्या हुआ कल रात को। अरे भाई मैं मैच हार गया बोले, मैच हार गया तो मैंने स्टंप मार दिया बोले 2 पुट्टों को।
भाई ये क्या पागल बने। फिर मैं गया इसके साथ में चिंकी के घर पे गया, नहीं कुछ तो चीकू के घर पे गया, और फिर हमें झगड़ा वगड़ा हुआ, फिर दारू वारू बहुत पिया मैं। 1:30 बजे आया रात को। मेरा बाप बोले साला फोन पे फोन यूज लगा रहा, मैं फोन पे फोन काट रहा, और मैं नशे में धुत। ऐसा चलते 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 गया। मेरे बाप ने वहां से देखा मेरे को, अरे विक्या, हरामखोर, एमसी, ये वो अन्य तरह की गालियां, तू पी के आया है क्या। वहां गया, बोले मोहल्ला उठ गया पूरा मेरा। मैंने बोले मैं सड़क पे लेट गया, मैंने मेरा शर्ट फाड़ दिया, मेरा ढेरी निकल गया, बोले मेरा पैंट फट गया। और मैं ऐसा सड़क पे बोल रहा मेरे बाप को, मार डालो मेरे को। और मेरी माँ रो रही, ये वो भोका, उसका एक मराठी एक्सेंट रहता था, भोकात भजे मारून टाका मला, ये वो। आई बोले अपन तो सुनते ही नहीं, तेरे को तो पता है अपना एटीट्यूड। बोला क्या वाहियात एटीट्यूड। सी इट्स अ टाइप ऑफ ईगो, but is he operating from lack? I'm not recommending you to be a such kind of person, because in long run you will be in trouble. You won't go anywhere in life. We have we have to operate from such kind of frame, but we need to have that intellect and maturity. The bad boys, the jerks, the casinos, the guys who are dickhead and they are dating such kind of woman, they they don't have maturity and they don't have intellect. They operate from a different type of entitlement which is based on ego. हमको वो नहीं करना है, बट हमारा ये हो जाता है, हमारा ये मेन प्रॉब्लम ये होता है कि वी आर टू मैच्योर एंड टू इंटेलेक्ट, तो वी बिकम टू एनालिटिक, एंड वी ऑलवेज फाइंड दैट वी आर लैकिंग समथिंग। इस पर्सन ने भाई भगा के शादी किया, फिर पिताजी का डेड हो गया, फिर इंजीनियरिंग छोड़ दिया, फिर बच्चे पैदा किए, फिर नौकरी पे लग गया, पिताजी उसके गवर्नमेंट पे थे, ड्यूटी के टाइम पे चले गए, तो फिर उसको सरकारी नौकरी मिल गई क्लर्क की, और बच्चे पैदा किए, फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, जिंदगी में सब उल्टा ही उल्टा की क्या। और आज भी मुझे मिलता है, वैसे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है उसके साथ ज्यादा मिलने में, क्योंकि वो बहुत पकाता है, वो अपना ही चेपते रहता है, और वो जैसा है वैसा आज भी है। वो वही किस्से सुनाता है, मैंने पट्टा निकाला, इसको मारा, उसको किया, वो किया। मैं बोला यार थोड़ा तेरे से 10 मिनट मिल सकता हूँ मैं, उसके बाद में मैं परेशान हो जाता हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई लाइक टू अंडरस्टैंड थिंग्स एट इंटेलेक्चुअल। आई थिंक दैट दिस क्रिएट्स। मेरा एक दूसरा बताता हूँ। अभी आप सोच रहे हो, अब मेरा सवाल है यस नो में जवाब देना, क्या इन लोगों को, एक ये पर्सन विक्की, दूसरा है पाटिल, ये मेरे फैमिली में ड्राइवर था। तो मतलब ड्राइवर, तो हमारे यहाँ वैगनआर थी, उसके पहले ऑल्टो थी। दिस गाय हैड सेक्स विथ 40+ वुमेन एंड 2025, तो मेरी घर की गाड़ी में क्योंकि छोटा सा शहर, उसमें कहाँ रूम्स लॉजिस्टिक्स वगैरह। नाउ दिस गाय, इसको कभी नहीं लगा कि मैं कोई किताब पढूं, मैं किसी समझदार आदमी के साथ में जाके बात करूं। इसको ऐसा था, सब पता है, सब पता है, इसको कुछ भी बोलो ना तो इसको पता ही रहता था और जो मल्टी थ्रेडिंग जो करता था, वो बहुत अमेजिंग करता था। अगर अगर ये कीरो का माइक है, अगर मैंने बोला ब्रो दिस इज कीरोज माइक, पता नहीं, अरे माइक की क्या बातें करता है, मैंने बहुत माइक देखे, मैंने तो अलग अलग माइक लोगों के चेहरे पे मारे हैं। एक लीडर को तो मैंने ऐसा सूद दिया, उसका ही माइक मैंने उसके, तो ही यूज टू टॉक लाइक दैट। क्या टॉपिक है, कहाँ जा रहे हैं। विल दिस गाय हैव अ प्रॉब्लम रनिंग आउट ऑफ द थिंग्स टू से, यस और No. will this guy have a problem, even a slightest thought in his unconscious that this woman is better than me? I think no. No, these people live in total ego. इसका Hmm. लॉन्ग बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, बट ये लॉन्ग रन की बात,
बहुत बार मेरे साथ में क्या होता है, और ऐसा शायद आपके साथ में भी हुआ होगा, इट माइट हैव हैपेंड टू यू आल्सो, कि आई एम ऑन द डेट, आई एम हैविंग अमेजिंग टाइम विद वुमन, बट डीप डाउन आई एम थिंकिंग, यार अगर हमारी केमिस्ट्री थोड़ी आगे बढ़ी तो मेरे जेब में तो 800 ही रुपए। फिर अगर इसने ये बुला लिया तो ओके, अरे यार अभी अपने को जाना है, आई एम टेकिंग दिस गर्ल टुवर्ड्स माई प्लेस, बट मैं तो अभी, उस टाइम की बात है, स्प्लेंडर चला रहा हूँ समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भाई मेरे पास तो कार नहीं है, अभी बरसात आ रही है, तो लड़की सोचेगी यार ये कैसा लो वैल्यू पर्सन, भाई मेरे पास सीडीआर स्पोर्ट बाइक है, मैं फिर भी एंटाइटल नहीं हूँ, गॉट द पॉइंट। और ये सही सही लोग, सही होता ये है। ये लोग ऐसे सोच रहे हैं, ये लोग सोच रहे ही नहीं है ऐसा। इंटेलेक्ट, टू मच ऑफ इंटेलेक्ट, सिंपल बात है। मैं उस वक्त वहां पे हूँ तो वहां की वो रियलिटी है, मुझे क्यों अननेसेसरी वो थॉट्स लाने हैं लैक के। उस वक्त तो मुझे अपने ऊपर काम करना है, लेकिन जिस वक्त मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, जिते जितेश ने, एक बहुत अच्छे बिजनेस कोच है जितेश मिशवानी करके, उनका मैंने एक वर्कशॉप किया और उन्होंने बोला कि जब आप क्लाइंट से बात करते हो, सब कोचेस को, सब ट्रेनर को अपने ऊपर काम करना पड़ता है और मरते दम तक करना पड़ता है, लेकिन अभी तो क्लोज करना है ना, अभी तो पैसा लेना है, तो ये थॉट क्यों अननेसेसरी आ रहा है, दिस थॉट इज ऑफ द लैक। मैं अगर किसी लड़की के साथ में डेट पे हूँ और वहां पे चीजें अच्छी चल रही है, तो व्हाई अननेसेसरी इवन स्लाइटेस्ट मूवमेंट ब्रिंग द थॉट ऑफ लैक, which will create incongruency when you are having a conversation with a girl. Why unnecessary get the interpretation? ईगो अच्छा है या बुरा है? आई लाइक वंडरफुल कोट ऑफ एंड्रयू टेट, he said, develop your ego to the massive extent, and but in a fruitful way, and because that gives you the hunger, that gives you the attitude of fire, of that anger, that frustration to do that. All the athletes do that, all the athletes do that, all the fighters do that, all the best people do that. But when you are alone, supplicate it with your intellect that my ego is rising, but in long run the ego will damage you. तो हम एक घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं इन पे, हमको सिर्फ ये इमोशंस पे 1 घंटे में काम करना है, इसलिए मैं रोज वो लास्ट वार्निंग दूंगा, ये खत्म हो गया है, इसके बाद में ये थॉट्स, ये इमोशंस नहीं आना चाहिए। व्हेन यू आर इन द आउटर वर्ल्ड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। अब मुझे बताओ, ये ऐसे लोग हैं, ये पाटिल हो गया, ये क्या हो गया है, वो एक मेरा डैनी दोस्त था, वो एक मेरा चंकी पांडे करके एक दोस्त था, दी टू आर ऑल गुड टाइप ऑफ नेचुरल्स, सो कॉल्ड नेचुरल्स। आई वोंट से नेचुरल्स क्योंकि वो नेचुरल्स नहीं है, आज मैं उनको देखता हूँ, दे आर कंप्लीटली जीरो। क्योंकि देखो उस जमाने में, उस सिचुएशन में, व्हाट वी लर्न इन गेम कंटेक्स्ट टाइम इमोशन, इन टेक्निकल गेम ऑफ एस्पेक्ट कंटेक्स्ट टाइम एंड इमोशन, उसमें वो चीजें चल गई। आज आ जाओ मेरे कॉलेज में, आ जाओ साला, तुम एक नंबर लेके देख लो, कुछ नहीं होगा तुमसे, भले ही तुम्हारा सक्सेस बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम, अहंकारी को अपना अहंकार मारता है। ये लोग शॉर्ट में सक्सेसफुल होते हैं, लॉन्ग में नहीं। हमको दोनों बनना है, वी हैव टू बी लाइक, रोज एक फोटो लगाऊंगा जेम्स बॉन्ड का, वी हैव टू बी लाइक जेम्स बॉन्ड, इंटेलेक्चुअली स्मार्ट, इंटेलिजेंट, a good in strategy, knows how to handle a huge pressure, but deep down calm, relax and composed in every situation. हमको वो बनना है, हमको वो डुअल स्वॉर्ड बनना है जिसका आउटर गेम भी उतना ही करिश्मेटिक है और इनर गेम भी उतना ही पावरफुल है। यू नो, दिस वंडरफुल बुक बाय केजिया नोबेल, द नोबल आर्ट ऑफ सेड्यूसिंग वुमन, कितने लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो जैसे तो मैं किसी फीमेल पर्सपेक्टिव लेता नहीं हूँ, लेकिन उस बुक में है ना, उसने बोला, उसने वुमेन को कैटेगराइज किया, बैड बॉयज, नाइस गाइज। तो वो बोलती है कि बैड बॉयज में क्या होता है, तो वो ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मैंने मेरी भाषा में समझाया, उसमें वो उसकी भाषा में समझाती है कि उसके बैड, उसके उसके रियलिटी के जो बैड बॉयज थे वो कैसे थे। लेकिन वो एक तीसरा पर्सन भी डालती है, वो बोलती है कि देयर इज समथिंग व्हाट आई कॉल अ गुड गाय, एंड डोंट थिंक दैट द गुड गाइज डजंट गेट गर्ल्स, इट्स जस्ट बिकॉज इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी टू behave like a dickhead,
Just because a guy who's treating and respecting a woman a lot doesn't mean that he will end up into nice guy category. Trust me, good guys do have a girl. And when I see the type of girl they have the real high quality and high self-esteem, self-respect oriented girls with them. Because such women aren't going to tolerate such kind of shit. It's like only the woman who has a low self-esteem is going to tolerate. और आज मैं उनको देखता हूँ और अरे डेफिनेटली उन बंदों ने जिन जिन लड़कियों को डेट किया, आज मैं उन लड़कियों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनका सही में कुछ सेल्फ एस्टीम डाउन था, कुछ मॉरल डाउन था, कुछ कुछ प्रॉब्लम था, शायद फैमिली से ये वो। नहीं तो ऐसा कौन सी शरीफ लड़की इतना कुछ एक्सेप्ट कर लेगी कि मैं तेरे घर पे कोई धमकी भी दे रहा है, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, तेरे को भी बचाता हूँ, तेरे खानदान को भी। Who the hell will tolerate? Do you think I was in best college? Do you think the woman who had studied with me in my college would really accept this kind of behavior? No way. नो। भेज देगी, जेल में भेज देगी, बोलेगी साला अंदर बैठ, पापा को। वो चल गया किसी जमाने में। एंड दिस टाइप ऑफ पीपल प्ले इन द लोअर लेवल ऑफ रूल। हम दो तरह के लोग होते हैं। एक जो शस्त्र है बहुत अच्छे जगह है, मतलब किसी बहुत अच्छे पंडित विशारद ने कहा है, जो शस्त्र चला लेते हैं वो शास्त्र नहीं पढ़ पाते, और जो शास्त्र पढ़ पाते हैं वो शस्त्र नहीं चलाते। हम बहुत कम ऐसे होते हैं जो दोनों काम बहुत बखूबी करते हैं। मतलब दे आर इंटेलिजेंट, दे आर पावरफुल, दे आर एक्सपीरियंशियल। द बेस्ट कैरेक्टर आई लाइक इज जेम्स बॉन्ड। ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट। माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड माई वेरी टॉप रिकमेंडेशन, आपने देखा होगा वो कैरेक्टर, आपने स्टडी किया होगा वो कैरेक्टर, पर जब जैसे हम लैक के ऊपर बात करेंगे, जस्ट फॉर द टाइम पास सेक, टाइम पास के लिए मूवी मत देखना, जेम्स बॉन्ड की सभी सीरीज देखो। उसमें देखो हाउ ही हैंडल्स द प्रेशर, हाउ हिज फ्रेम इज। और द वर्ल्ड इज नॉट इनफ का जेम्स बॉन्ड का नाम मुझे याद नहीं आया था, पोर्स पायरसन कुछ तो भी नाम है। पियर्सन, पियर्सन है सर। पियर्सन है ना। हाँ। द वर्ल्ड इज नॉट, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर। और अभी वाला भी अच्छा है। अभी वाले का क्या नाम है जिसकी घारी आंखें है, डैनियल। डैनियल क्रेग। हाँ वो दोनों अच्छे हैं। पुराने वाले जमाने के जो जेम्स बॉन्ड थे वो थोड़े से ट्रेडिशनल थे, लेकिन उनको जब ऑब्जर्व करोगे ना, वाह व्हाट अमेजिंग। और एक और हॉलीवुड का एक्टर है जिसका ट्रांसपोर्टर करके एक सीरीज है, वो टकला है, जेसन जेसन थॉम करके है। स्टेस। जेसन, हाँ स्टेफसन कुछ करके है। हाँ उसका भी देखो, उसका फ्रेम देखो। दे दिस काइंड ऑफ मैन व्हाट वी रियली एस्पायर टू बी, इंटेलिजेंट, करिश्मेटिक। जेसन स्टेथम। जेसन स्टेटम। स्टेथम। क्या नाम है यार नाम याद नहीं आ रहा मेरे। STATHAM। हाँ वो देख लेना उन कैरेक्टर्स को। हमको वो बनना है, वो ये नहीं बनना है। This chunky Pandi, like they are doing absolutely nothing. Our thing is to be a high quality man for whom the high quality women's will be the byproduct of our lifestyle. That's our motto. जब हम कर रहे हैं गेम, there is a huge struggle, huge pain. But when we behave outside, we don't, वो लैक की फीलिंग, वो एंगर की फीलिंग, वो रिएक्टिवनेस, वो अंदर नहीं, बाहर से। हमको उस बदक की तरह होना है, हमको शॉन की तरह होना है कि वो बाहर से तो एकदम काम कंपोज रिलैक्स लग रहा है, लेकिन अंदर से वो पाइडलिंग करते जा रहा है पानी। हमको बाहर से सिर्फ ऐसा दिख रहा है जैसे स्मूथली घूम रहा है पानी के ऊपर, ऐसे 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 ऐसे। बट अगर उसके नीचे देखोगे तो ही वॉज कंटिन्यूसली पेडलिंग। हमको वैसा स्पिरिचुअल फूल नहीं बनना है कि बस ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और वी हैड जस्ट मेंस रिट्रीट, हम एक दूसरे को हक किया, हमने हो पोनो पोनो किया, हमने रोया एंड इट फील सो गुड। ये गे लोग करते हैं, हमको ये नहीं करना।
ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसका कोई बाहर का बिहेवियर हमारे बाहर रिफ्लेक्शन में नहीं दिखने को मिला। बाहर हमको हार्वी स्पेक्टर की तरह होना, पावरफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, करिश्मेटिक। लेकिन हार्वी स्पेक्टर का एक अपना इशू था। आप लोगों ने अगर सूट्स नहीं देखा है तो सूट्स देख लेना। आपने देखा है विश्वा भाई सूट्स? नहीं देखा। सूट्स देख लेना। सूट्स में दो कैरेक्टर है, एक लुइस लीड है, स्पेलिंग बोलना। हार्वी स्पेक्टर है। स्पेलिंग बोलना। सूट्स, SUITS। अरे कोई चैट चैट बॉक्स पे टाइप करो यार, सूट्स का स्पेलिंग क्या है। तो उसमें क्या होता है ना कि वो बाहर तो बहुत करिस्मेटिक और पावरफुल होता है, डेटिंग भी अच्छा। उसका अच्छा चलता है। लेकिन वो एक काउंसलर और थेरेपिस्ट हायर कर लेता है, क्योंकि अंदर बहुत पेन है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके बाप को चीट किया रहता है, और वो एक अलग लेवल के खुद के डिप्रेशन में रहता है। हम्म। हमको ब्रेकिंग बैड का वॉल्टर वाइट नहीं बनना है। आई वुड नेवर रिकमेंड दैट वेब सीरीज टू वॉच। ब्रेकिंग बैड देखा है? नहीं। वो तो देखो भी मत। अच्छा। बट सूट्स जरूर देखना। सूट्स नहीं भी देखोगे तो 10-15 मिनट में समझ आती है। उसमें आपको आइडिया आ अच्छा। जाता है, फिर आपको समझ में आते हैं कैरेक्टर्स, हार्वी स्पेक्टर कौन है। पावरफुल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, करिश्मेटिक, ऐसा पर्सन बनना है। दिस पर्सन डजंट ऑपरेट इन लैक, ऑल्दो दे हैड सम काइंड ऑफ लैकनेस इनसाइड देम। हमको वो करना है। ओके ओके। गाइस, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे हमेशा के रिचुअल। ये लैक, ये एंगर, ये ग्रीड, अपने आप से जिंदगी में एक कमिटमेंट बना लो। अपने आप से एक वादा कर लो। when I am in a learning program, when I am in that zone of learning, मैं अपनी बात, अपने वीकनेस की बात, इस जिंदगी को गार्ड मान लो, लाइन बना लो, चाहे तो साला टैटू बना लो। जब भी वीकनेस की बात होगी, वल्नरेबिलिटी की बात होगी, ये सब चीजों की बात होगी, आपके इनसिक्योरिटीज की बात होगी, 10 इमोशंस की बात होगी, इसके बिहेवियर की बात होगी, आप उससे बात करोगे जो आपका बिजनेस कोच है, जो आपका लाइफ कोच है, आपका काउंसलर है, आपका थेरेपिस्ट है, आपका लॉयर है, आपका डॉक्टर है। माई डिक इज स्मॉल, ये बाहर बताने की जरूरत नहीं है। अपने सगे भाई को भी नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं, नो मैटर हाउ क्लोज ही इज, नो मैटर। क्योंकि हमको नहीं पता आने वाली सिचुएशन कैसी रहेगी, क्योंकि ये सब इमोशंस है। ये आप बताओगे डॉक्टर को, ये देखो भाई ये है, ये प्रॉब्लम है, दैट इज अंडरस्टैंडेड इन द प्रोफेशनलिज्म। समझ रहे हो? यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्ट। किसी को बताने वाली जरूरतें नहीं है। या फिर वो पर्सन को जो आपकी फिलॉसफी से अलाइन करता है, वो पर्सन जो सिर्फ इसके ऊपर ही काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर पार्टनर। जैसे जिम में एक पार्टनर होता है ना, वो जिम पूरता ही मर्यादित होता है। जैसे स्पोर्ट्स में एक पार्टनर होता है कि मैं बैट्समैन हूँ, वो बैट्समैन है, तो मेरा ये वीकनेस है, मेरा ये वीकनेस है। जैसे आपका कोई होगा जो आपके साथ में काम कर रहा होगा, मेरे लिए मेरे एक फ्रेंड है, शिव भाई है। मेरे ऐसे काफी विंग है, जैसे एक पूना के प्रीतम भाई है। एक ऐसे कुछ दोस्त है जिनके साथ में मैंने गेम सीखा है, मैं उनके साथ में बाहर गया हूँ, मैंने उनके साथ में विंग किया है। तो मैं ये सब चीजें उनको ही बताऊंगा। सोशल सर्कल, इवन, क्योंकि वो लोग समझेंगे नहीं, अननेसेसरी क्यों पावर लूज कर रहे हो इन द सोशल सर्कल, इन दैट रिलम यू हैव टू नेवर नेवर गेट दैट फीलिंग। आपको फाइंड आउट करने हैं अपने लैक, तो हम अपने लैक के ऊपर काम करते हैं आज। और ये यहाँ तक ही सब्जेक्टेड है, इसको बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, तो ये हमारा, ये लैक कुछ भी हो सकता है, आपको फिगर आउट करना है आप में क्या लैकिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि लैक समझ में नहीं आता है। काफी चीजों पे मैंने काम किया है, मैंने काफी चीजों पे काम किया है, फिर भी मुझे लगता है कुछ तो भी कमी है। और जो कमी है वो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है क्या कमी है, ऐसा मुझे हमेशा अंदर से लगते रहता है। नो मैटर कितना भी आप बड़े बन जाओ, हर आदमी को कैसे ना कैसे लगता है। लेकिन बीइंग इन द कोचिंग इंडस्ट्री, इफ आई एम लाइक डिस्प्लेइंग सो मच ऑफ वल्नरेबिलिटी, तो पता है लोग आएंगे नहीं मेरा प्रोग्राम खरीदने। उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे ऐसा पावरफुल प्रिटेंड करना पड़ता है। और ये सबको लगता है,
वॉरेन बफेट को भी लगता है, ये चार्ली मुंगर को भी लगता है, ये बिल गेट्स को भी लगता है, क्योंकि भले उस एरिया में नहीं लगता होगा, किसी और एरिया में लगता है। तो हम्म। जो है वही आपको आपका लैक लिखना है। हो सकता है कि आपको लगता है कि भगवान सबको बाल दिए, मेरे को बाल नहीं दिए भाई, सबको हाइट हाइट नहीं दिए भाई, तो ये भी एक लैक हो सकता है। सबको सही पेरेंट्स, सही। मेरे को पेरेंट्स नहीं दिए, ऐसा भी वो है किसी का लैक। कल ही बात कर रहा था, वो कुछ और ही बोल रहा था, भाई मेरा ये लैक है। मैं बोला है यार, अभी ये लैक के ऊपर काम करो। तो हम 10 मिनट का 6 मिनट का वो करेंगे, फाइंड आउट योर लैक, जो हमको हमारे इस प्रोटोकॉल शीट पे लिखना है, जो अपना दूसरा लैक है। ये वाला इसलिए उतरना है यहाँ पे, ये दूसरा होगा कुछ। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आई कवर बांध लेना। Hi everyone, this is 10 to 15 minutes of process to find our आवाज आ रहा है ना? right आ block रही आ रही। that is holding on. As we are in the process to find out which is the block that is holding us, make sure while you are in the process, you are in the neutral state of mind. The right solution comes when your state of mind is very clear. For that, to get into that state of neutral mind, we have to breathe from both the nostrils. For that, we do Nadi Shodham. Inhale from one nostril, exhale from another, and inhale from the another, and exhale from the another. 2 to 3 rounds of Nadi Shodham. Make sure that you have chin mudra with the another hand, what we call dhyana mudra. After 2 to 3 rounds of Nadi Shodham, make sure your both the hands are in chin mudra, what we call dhyana mudra. Let's start. You can be relaxed, comfortable, and we will start with 2 to 3 rounds of Nadi Shodham. And now, for 30 seconds to 1 minute, pay attention to the normal breath. While doing that, make sure that your both the palms are in chin mudra, what we call is dhyana mudra, and try to find out and evaluate on the current block that we are working on. What is that one thing that is holding you on the block that we are working today?
And now remove your eye cover. Open your protocol sheet of the current block that we are working on. Read the statement twice and start writing about the block that you have. For those who have finished writing, can message in the chat box. Let's continue to the practice of longer session after the explanation. Okay, done. चलो, अब जैसे when it comes to dating, relationship and interacting with women or expressing my masculinity, I feel I lack a specific type of mindset which I am not able to identify. I feel deep inside I am lacking something that I always feel that I'm not able to catch or be aware of it. That is within me. मुझे बीइंग जैसे वेदांत वेदांत भाई उस दिन बोल रहे थे कि एम्बिशियस होना, डिजायरफुल होना, मुझे ऐसा लगता है कि आ, एक 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 ऐसा लगता है मुझे कि आई एम नॉट स्टिल रेडी। कुछ तो भी कुछ तो भी मिसिंग है, कुछ तो भी लैकिंग है। अभी 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 तक पूरा नहीं हुआ। अभी अभी तक मैं स्टार्ट नहीं करता। लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे मेरे साथ में ऐसा होता था कि अभी मैं एक लड़की से बात कर रहा था, वो बोलते यार तुम क्या सिर्फ लड़कों को ही मेडिटेशन लोगे, लड़कियों को नहीं लोगे या कभी? मैंने बोला नहीं नहीं, मेरा प्लान है आगे कि यार दोनों के लिए करना है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। पता नहीं मैं लड़कियों को समझ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि उनके इश्यूज अलग रहते हैं। मैं हमेशा मेन के पर्सपेक्टिव से इश्यूज एड्रेस करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे एक्सपीरियंस है। तो वो बोले यार तेरा वो हमेशा का ही नाटक रहता। भले ही उसने मजाक में बोला, लेकिन मेरे अंदर वो एकदम से ऐसा क्लिक बैठ गया। हाँ यार ये तो बात सही बोल रही है, क्यों ना किया जाए, बस तो प्रॉब्लम जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगी। मतलब व्हाई नॉट हैव अ ग्रुप। मैंने सोचा यार हाँ पॉइंट तो सही है। जैसे लाइक कभी कभी मेरे अंदर ही वो ऐसा होने लगता है। राज भाई, गेम क्या बोलते हैं, ये सिखाते सिखाते गेम भी हो सकता है। हम्म। ये भी एक है सोर्स। हाँ हाँ, मुझे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट वहां से ही मिले। वही 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 कह रहा हूँ ना। मेरी ये मेरी भी। जितने भी गर्लफ्रेंड्स थी सब स्पिरिचुअली ही थी। हाँ हाँ हाँ। सब स्पिरिचुअल थी, सब रीडर थी, सब इंटेलेक्चुअली पढ़ने वाली। वो कहते हैं ना, यू अट्रैक्ट विथ whom you। व्हाट यू आर। सब वैसे ही है। हम्म। वैसे ही है, मेरे टाइप की है थोड़े थोड़े।
बट ऊपर ऊपर से लगेगा काफी डिफरेंस है। बट कुछ पैटर्न्स और कुछ बिहेवियर्स एकदम, जो वैल्यूज प्रिंसिपल्स वगैरह की बात होती है वो एक सेम ही है। बहुत ज्यादा बुक्स में है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में है। भले ही हम्म ऑर्गेनाइजेशंस अलग हो गए, व्यूज अलग हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स अलग हो गए, एंड दैट्स ट्रू ना, यू अट्रैक्ट हु यू आर। हम्म। हाँ, तो ये इसका इसके ऊपर मेरा प्लान है। तो वही वही सोच रहा हूँ, स्टार्ट करूँ, कब से करूँ, क्या करूँ। प्लान बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया है, हाँ। बढ़िया आइडिया। वैसे सुबह मेरा भी 2 टाइम काम हो जाएगा। और अरे लेकिन हम बहुत दिन से मेरे दिमाग में, मतलब मेरा एक गोल भी था कि आई वांट टू बिकम समथिंग लाइक इंटी, मतलब ऐसा कि एक, मैं हमेशा सोचता था कि यार योगा टीचर वगैरह बने बढ़िया सा एकदम। डेटिंग कोच बनना मेरा कोई एस्पिरेशन नहीं था, लेकिन हाँ अगर मेरा एस्पिरेशन था तो योगा टीचर बनना था। हम्म योगा योगा ये वो, बट वह मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए, ना मैंने उसको अप्लाई किया अपने लाइफ में, ना अपने कैरेक्टर में उतारा। और बनना है तो मेरा वैसे ही था यार, बनना है तो अच्छा ही बनना है, नहीं तो ऐसा फालतू बनने में मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसा था मेरा हमेशा कि यार अगर मैं उस टाइप की लाइफस्टाइल जीऊँ, ना पीना ना फूकना ना कुछ करना, ना ये एकदम क्लीन एकदम ग्रीन फूड खाना, तो मजा है। मतलब वो एक लिविंग लाइक आइडेंटिटी। आई हैव हम्म lived the identity as a gamer, but I haven't lived the identity as a yoga person. हम्म। तो देखते हैं, हु नोस। हम वो सोचते हैं हम बहुत प्लान करेंगे, पर उसके भी बड़े बड़े प्लान होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो स्टार्ट करते हैं। लैक के ऊपर 35 मिनट्स का है लैक, तो भी तो बता रहा हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है। Hi everyone, this is your brother, your friend Raj, and we are here for this 30 minutes of our ritual. Before we start with the ritual, let's start something with gratitude. Take a 1 minute for whatever you are thankful for. Evaluate your day, your current situation in life. There is something that you are really grateful for. Remember, abundance first start with your own self. If you are not grateful now, then no matter what you achieve, what you have, you will always be in scarcity. So be grateful for whatever you have. With normal breath, with open palms, be grateful.
And now it's time for setting the intention. As we are in this new phase of meditation, we already have a clear intention of working on all the 10 protocols: fear, insecurity, lack, jealousy, anger, guilt, shame, limiting belief, revenge or hate, and the last, genetic triad. So this protocol is for fear. So our intention is for fear. You might have various different type of fears that you have listed in your protocol sheet. So your intention about the fear can be to dissolve or vanish the fear that is holding you. For 1 minute, get focus on your protocol. Set your intention to release this fear that is holding your success in dating, masculinity, relationship, woman, and sexuality. For just 1 minute, pay attention to the intention of just releasing, letting go, and dissolving or eliminating the fear that is holding you. And now, once our intention is clear, our intention to eliminate, delete, release this negative block or this negative emotion that is holding us, the emotion, the feeling of lack that is stagnating our success is clear, we will have 3 rounds of EFT. In EFT, for the longer statement, we tap on the karate chop, which is our first tapping point. You can say the statement loudly, slowly, you can verbalize it with me or by your own, depends on which surrounding you are practicing. Make sure while I am saying the protocol and tapping, you are continuously tapping on your karate chop. Let's start with the protocol. So once I start with the protocol, make sure that you engage fully, emotionally, and feeling the protocol. Let's start. When I say your protocol, you have to say the protocol which you have written in the protocol sheet. So we will have 3 rounds of EFT tapping for lack.
Let's start. When it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing masculinity, I feel lack. My protocol. When it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, I feel I lack. Even though it is true or my assumption, I deeply and completely accept myself. Even when it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, I feel I lack. My protocol. I deeply and completely accept myself. When it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, I feel I lack. My protocol. I deeply and completely accept myself. Release. I release this lack from me. Once we start with short tapping, start tapping on the top of your head to all covering the meridian points, center of your eyebrow, starting of your eyebrow, side of your forehead, below your eyes, on your chin, your collarbone, covering all the meridian points. While saying release, I release this lack from me. I accept myself completely. I release this lack. Release. I let go of this lack within me. I release this lack from me. I accept myself completely. I let go this lack within me. I let go the feeling of lack that is holding me. Release. I let go of this lack within me. Keep on tapping the meridian points while saying. Make sure that you have completed 3 rounds from top of the head to your armpit. Round 2. When it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, I feel I lack. My protocol. I deeply and completely accept myself. When it comes to, this is a long statement, so keep tapping on the karate chop. When it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, I feel I lack. My protocol. Even though I feel that this lack might be true, I deeply and completely accept myself. When it comes to dating, relationship with women, or expressing my masculinity, I feel I lack. My protocol. Even though this feeling might be true, inside me, I might be feeling that okay, I lack this something in me. I deeply and completely accept myself. Let's start with the short protocol. Start tapping from the top of your head. Release.
I release this lack from me. I accept myself completely. I release and I let go this lack within me. I accept whatever the lack I have written. I let go this lack within me. Release, release. I release this lack from me. Release, I accept myself completely. I release, I let go this lack within me. Make sure you have completed 3 rounds from top of the head to your armpit. Last round. When it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, I feel I lack my protocol. Even I feel so, I lack something, I deeply and completely accept myself. Keep on tapping on the karate chop. We will take it fast. When it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, I feel I lack my protocol. I deeply and completely accept myself. When it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, I feel I lack my protocol. I deeply and completely accept myself. Then, for short tapping, start from the top of the head. Release, I release this lack from me. I release, I accept myself completely. Release, I let go of this lack within me. Release, I accept. Release, and accept and release. You may continue 3 rounds from top of the head to armpit. Once we finish the armpit and from top of the head, you may gently press all your 11 meridian points. Feel the emotion for next 1 to 2 minutes. And now, as we have completed our EFT tapping for the emotion lack, it's time to start with Ho'oponopono prayer for lack. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Dear lack, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. My lack, my feeling of lack. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. My lack,
I am sorry for believing in scarcity and not trusting the universe provides everything I need. I am sorry for focusing on what I don't have instead of being grateful for what I do. Please forgive me for feeling unworthy of abundance and resisting the flow of prosperity into my life. Thank you for showing me that abundance is always available when I am open myself to receive. I love myself for shifting my mindset from lack to abundance and embracing these limitless possibilities before me. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Dear lack, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. My feeling of lack, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Once we complete our Ho'oponopono prayer, just pay attention to the emotion for next 1 minute. And once we have completed with our Ho'oponopono ritual, it's time to dive deep into self-discovery meditation. Remember, when we start with self-discovery meditation, make sure our spine is erect, neck is straight, and there is zero movement in our body. Make sure for entire 20 minutes you are complete statue. Make sure that you maintain dhyana mudra for next 20 minutes.
5, 4, 3, 2, 1. Slowly and gently, without opening your eyes, relax your body. You can rub both of your palms and keep them on your knees, palms open facing towards sky. And with the closed eyes, we will rub both of our palm till they get warm. And slowly, steadily feel the magnetic charge flowing between both of your palm. Bring it closer, take it far. Feel that there is a magnetic electric spark within them. There is some power, a force that is attracting them and repelling them. Imagine that there is a fireball, the spark that is generated within both of your hand. While imagining this thing, I will recite our daily manifestation ritual. I am a magnet for abundance and success. I am always in the right place at the right time. I am attracting best opportunities into my life. Everything happening to me in my life right now serves my highest good, and everything coming into my life aligns perfectly with my purpose. I live my greater purpose every day, growing into best version of myself. I fully embrace my worthiness and receive all the amazing blessings life offers with gratitude, joy, and love. Abundance flows to me easily and naturally, and I welcome it with open heart. I receive an abundance of wealth, richness, meaningful relationships, deep connections with high quality and inspiring people, exceptional men, and absolutely beautiful, gorgeous women completely into me. I embody myself with vibrant health and fitness, supported by perfect diet, rest, workout routine, achieving my best physical form. I welcome all these blessings into my life, gratitude, joy, and love. Thank you, universe, for aligning everything perfectly and preparing me to embrace this incredible day with confidence, gratitude, and joy. And that's what my intention is there between both the palms. And slowly, steadily take both the palms in front of the glass of water. You can remove the eye cover, and just looking at the glass, we will have a short Ho'oponopono prayer. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Once you have charged the water, you can have a sip of water or can drink the entire water from the glass. Thank you for joining us. Stay tuned. In meditation, commitment and practice is what leads to real growth and real transformation. Have an amazing ahead.
गाइस वी विल हैव जस्ट वन करेक्शन। जब भी सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन होता है, जब वो काउंटिंग आता है 5 4 3 2 1, और यू कैन रिलैक्स योर बॉडी, तब आप निकालोगे तो चलेगा, और आंखें बंद ही रहने देना। द रीजन इज लाइक, जब हम ये करते हैं, लाइक वी डू द विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हम सीखेंगे डिटेल में। ये जब करते हैं, तब एक हाथ निकालो फिर ऐसा निकालो। इट्स बेटर कि आप तभी निकालो। करेक्शंस किए हैं मैंने ऑडियो में, वो कल से आ जाएंगे। हाँ विशु भाई, मैं ये बोल रहा था कि अभी ऑलरेडी हाँ। 10:30 हो गया है। आपको नाइट गेम के लिए नहीं जाना है क्या? आज सैटरडे। नहीं नहीं, नहीं क्यों? मैं नहीं जा रहा हूँ। अबे भाई, भाई मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सैटरडे घर पे मत रहो यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, सही में बोल रहा हूँ तुमको। सैटरडे संडे कभी मत छोड़ना। आईटी हाँ वर्क हाँ। होते हैं, दिल्ली होते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हम्म। मतलब आप देखोगे सबसे ज्यादा टिंडर, बम्बल, ये सब चीजें जो है, स्पेशली नाइट क्लब्स, ये वो वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा होता है। लोग थक जाते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये भी होता है, द हाँ मूड्स हाँ। आर वेरी गुड। दैट इज अ अपॉर्चुनिटी वाला डे। हाँ हाँ। बाहर जाना कभी मत छोड़ना। एंड योर फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग आर सॉर्टेड, सो यू मस्ट मेक एन एफर्ट टू एटलीस्ट once or twice to for night games, especially the elite clubs। हम्म। पार्टनर देख लो कोई एक, पर नाइट गेम जरूर जाते जाओ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ द टाइम, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स कंफर्टेबल। ओके। हम्म। और मैं भी नाइट गेम में जाता था। मैं सब सब काम धंधे निपटा के आराम से जाता था। ऐसा नहीं कि पूरा ही मैं फ्राइडे को निकल जाता था 10 बजे, सैटरडे को, संडे हाँ को। हाँ। संडे को मेरा जल्दी हो जाता था। संडे को कुछ नहीं करता था, 10 11 बजे वापस आ जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे में थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट और ये रहता था। हम्म। बाकी मंडे टू थर्सडे वैसे तो मैं रोज ही जाता था, बट मंडे अच्छा। में ठीक है, 1 2 घंटा 2 3 घंटा। बट हम्म। अब जाओ यार, अब जाओ। लगे तो अपन मंडे को करना, मंडे का कल हाँ का। कोई नहीं, हाँ मंडे कर लेते हैं। सैटरडे कभी मत छोड़ना शो को। ठीक ठीक बेस्ट। ठीक। ठीक है। ओके गाइस, ओके। we will connect tomorrow at the same time. And those who go out regularly on Sunday, I would suggest recommend that recordings and everything are there, so you don't have to worry about it. But make sure Saturday and Sunday you are mostly out. You can do another thing if you are a day gamer, especially on Sundays. I would suggest you Sunday को सुबह उठो, सुबह उठ के 10 11 बजे चले जाओ, रात को 11 बजे तक निपटा लो। इट्स लाइक अ ह्यूज लिवरेज दैट यू गेट। मैं पहले करता था, लेकिन अभी मेरा फोकस पूरा का पूरा इन चीजों पे। तो राज भाई, टायर्डनेस नहीं आता 11 से 11 करने पे? नहीं 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 नहीं, वो कैसा होता है ना, अभी मतलब 11 से 11 सेट नहीं ओपन करना है। खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, रेस्ट करना है, फिर से जाना है, बट बी इन द फील्ड। समझ गया। एफसी रोड पे रहता था। एफसी रोड दिन भर संडे को। एफसी हम्म बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट, शाम को बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट, फिर रात को 8 9 बजे के बाद में कोरेगांव पार्क, और हम्म फिर कोरेगांव पार्क, फिर 8 9 बजे के बाद में कोरेगांव पार्क, फिनिक्स मॉल, विमान नगर, और फिर दस हम्म ग्यारह बजे तक। मैं तो मतलब सुबह से ऐसे मैंने है ना, ऐसे 8 दिन निकाले हैं, जब मैं सुबह 11 बजे गया और रात को डायरेक्ट 1 1 2 2 बजे आया। तो मतलब लर्निंग कर्व काफी अच्छी हो जाती, काफी अच्छी हो जाती। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं। और लाइक पहले कैसा होता था कि ऐसा मैं बाहर जा रहा हूँ कि जैसे गन है मेरे पास में और मुझे कुछ जाना है। बट बाद में मैंने वो माइंडसेट चेंज किया। बाद में मैंने वो, इट्स लाइक, वो एक बहुत ही वियर्ड माइंडसेट होता है। फिर मैंने सोचा यार ये इतना हड़बड़ क्यों, लोगों से बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, हर बार कोई ना कोई अच्छा मिलता था, कभी बैंक वाला मिलता था, कभी कोई ये मिलता था। तो फिर मैंने थोड़ा अपना माइंडसेट भी चेंज किया। इट्स लाइक जस्ट अ सोशल लेवल ऑफ सेरोटोनिन फील हम्म। बहुत अच्छा मिल रहा है। और काफी अच्छी नर्चर, और काफी चीजें समझ में भी आती थी, काफी लोग सही सही मिलते थे।
काफी हम्म। सीखने में मिलती थी उनके उनके प्रोफेशंस के बारे में। मैं सब हाँ, वो अगर इस माइंडसेट से जाओ कि रियल रिजल्ट रिजल्ट, या फिर मतलब कुछ अचीव करना है, फिर तो थोड़ा बहुत ना प्रेशर बहुत होता है। हाँ, कुछ अचीव करने से हाँ, प्रेशर हुआ हो। लेकिन प्रेशर बहुत। वो एक ऐसा समझो ना, जैसे मैंने बोला ना कि लैक है, सब है, सब है, वहां पे उसको हाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, समझ गया। मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे गेम करना है, वो सब कुछ फील्ड में नहीं। वहां हम्म से आने के बाद में आप टैली करो, वहां से आने के बाद आप एनालाइज करो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं। हम्म। तो जैसे मैं हमेशा मेरे एक एक सेकंड में आपको जर्नल दिखाता हूँ। वो हमेशा मेरे साथ साथ है ना, ऐसे 3 डायरीज रहती थी, हम्म दोनों अलग अलग कलर। एक तो मैं डेली शेड्यूल के लिए लिखता था, उसमें मेरा सिंपल रहता था। ये देखो, ये मेरा डायरी है, ये मैंने डेट लिखा है 3 फरवरी। तो ये तो मैं डेली चीजों के लिए लिखता था, व्हाट आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर टुडे इन माई लाइफ। तो मैंने डाला है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर वन थिंग दैट हैपेंड रियली ग्रेट। कि कोई तो भी मुझे सजेशन पूछ रहा था, मैंने उसको चाम कमांड बोल दिया, उसने फटाक से 699 पे कर दिया। इमीडिएट क्लोज हो गया वो। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हेल्प फ्रॉम माय फैमिली विच वाज ट्रूली अ सपोर्ट। मुझे वो माइक खरीदना था, तो मैं हमेशा दोस्त को माइक लेके आता था। मेरे बाप ने बोला, अरे पैसे ले, भोसड़ी के दो भीख मांग के धंधे छोड़, लेके आ जा। तो और ये लिखता हूँ, व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई मस्ट इम्प्रूव। अभी छोटी सी चीज क्या है ना, मैं मैं ऐसा, मैं मेरे हाथ में ना चाय था, तो मैंने ऐसा चाय लिया और इधर हाथ धोया था, और बस हाथ मिलाने गया, तो वो क्या बोलता है, ए हाथ गीला है। दिस इज अ बेसिक सोशल लेवल ऑफ थिंग। वो क्लिक नहीं हुआ हम्म कई कई में। तो फिर मैंने वो लिखा, वन थिंग आई लर्न टुडे दैट इज वेरी कॉमन सेंस नाउ डेज विद टू मच इंटेलेक्ट आई थिंक कॉमन सेंस इज डिग्रेडिंग। या मेरे पास में हैंकर थी, मैंने पूछना था और फिर हाथ मिलाना था। हम्म। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी होती है, अभी वो फिर एक क्लिक बैठ गया हमेशा। और फिर मेरे को अभी अभी जो भी हाथ मिलाता है, मैं बोलता हूँ रुक, हाँ। दिस दैट्स व्हाट इम्प्रूवमेंट इज ना। डेली आप लिखोगे, डेली आपको समझ जाएगा। हाँ हाँ। जाओ जाओ डेली क्लब जाओ यार। मतलब डेली मतलब सैटरडे संडे तो भी जाओ, हम्म। फ्राइडे सैटरडे तो भी जाओ। बाकी कनेक्ट करते हैं। ओके गाइस, ठीक है। ओके। चलो, गुड नाइट।